जय सिया राम। चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। एट फर्स्ट पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, स्टडी ऑफ कैथोड रे और इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ये दिए थे, ठीक है। एट वेरी लो प्रेशर 10 to the power -2 to 10 to the power -4 atm एंड ऑल्सो हाई वोल्टेज, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज 10 to the power 4 वोल्ट। ओके, यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है। कैथोड, एनोड, एनोड की तरफ यहाँ पे ZnS की कोटिंग की हुई है, जिसे कहते हैं फ्लोरेसेंट इफेक्ट। ये शो करता है जैसे ही स्पेस स्ट्राइक करेगा ये लाइट इमिट करता है। ओके, इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल रहा और ये कहाँ जा रहा है, एनोड के पास जा रहा। ओके, बीच में जब ऑब्जेक्ट रख कर देखे तो इसका शैडो बना, रोटेटर रख के देखे तो ये रोटेट किया और ये क्या बता रहा है, ये इसका पार्टिकल नेचर शो कर रहा। ओके, at a very low pressure and high voltage. Okay, electron from metals as well as electron from gas, ये दोनों जगह से निकला है और ये अब जिसे हम लोग कह रहे हैं कैथोड रे। ओके, ये नेगेटिवली चार्ज है, हाँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है। जैसे H2 गैस है तो यहाँ से H गैस एंड देन फिर ये बना H प्लस प्लस, एक इलेक्ट्रॉन आया, देन H प्लस, ये जो पॉजिटिव है ये एनोड रे कहलाया। और प्रोटॉन और कैनाल रेज, एनोड रे या फिर प्रोटॉन या फिर कैनाल रे जो कह लो, और फिर E माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, कैथोड रे और निगेट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये एनोड रे, H प्लस एनोड रे, प्रोटॉन और कैनाल रे। ओके, कैथोड रे आर फर्स्टली originated from material of electrode, then followed by ionization of gases. Okay, और फिर एनोड रे are originated by ionization of gas only in space between both the electrode. Okay, cathode ray are always made up of negatively charged electron in which mass charge, specific charge q upon m always remains the same irrespective of nature of gas taken in the discharge tube, so that cathode ray are regarded as universal in nature. हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इसका सब कुछ सेम है, चाहे कोई सा भी गैस हो, इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो तो E माइनस ही होगा। यस, बट एनोड में ऐसा नहीं है। एनोड रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन इन विच चार्ज mass q upon m is different for different gases, hence not universal in nature. It depends upon nature of gas in discharge tube. Okay, cathode rays given by J. Thomson, but anode rays given by E. Goldstein. Electron move towards anode, strike and show fluorescent effect. Okay, और फिर H plus move towards perforated cathode. H plus moves towards perforated cathode, strike and show phosphorescence, मतलब थोड़ा कम लाइट उसके कंपैरिजन में, मतलब थोड़ी देर से ये शो करता है, इसलिए क्या है फॉस्फोरेसेंस। जैसे H2 गैस है तो यहाँ से H प्लस मिला हुआ है, Cl2 गैस था तो Cl प्लस, N2 गैस है तो N प्लस, ऑक्सीजन गैस है तो O प्लस। कैथोड रेज, एक क्वेश्चन है, कैथोड रेज इमिट फ्रॉम कैथोड, यस ट्रू। एनोड रेज इमिट फ्रॉम एनोड, नो, ये गैसेस से आता, ठीक है। कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड निगेट्रॉन एंड फर्दर स्टोनी गिव द नेम इलेक्ट्रॉन। ओके, cathode rays are positively charged particles known as canal ray. Anode rays are positively charged particles and also known as canal rays. Metal rod को परफोरेट करने के कारण ये देखने में लगता है कि ये केव से निकल रहा है, डेट्स वाई इसके कहते हैं कैनाल रेज। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज। These rays have particle nature, ये दोनों के लिए कॉमन है। These rays have particle nature and possess kinetic energy as they rotate the mica wheel placed in its path. और particle nature मतलब one place and one thing is present. Energy transferred from one place to another by transfer of matter. Energy transferred from one place to another by transfer of matter. Energy transfer होता from one place to another by transfer of matter. These rays travel in a straight line, consist of material particles, i.e. possess mass, energy, kinetic energy, may exert force of friction.
Okay, these rays produce heating effect. These rays are reflected by external magnetic field and electric field. These rays produced by heating effect. ठीक है, these rays are reflected by external magnetic field and electric field. These rays travel in a straight line in absence of electric field and magnetic field. When this rays is made to collide on heavy metal, copper, molybdenum, tungsten, then some radiation called as X-rays are produced. When this ray is made to collide on heavy metal, copper, molybdenum, tungsten, then some radiations called as X-ray are produced. इन सब पे जैसे ही टकराया तो ये एक्सरे निकला. ओके, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब इक्वल्स टू -4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. ओके, 1F इक्वल्स टू 96500 कूलम्ब. चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 6.02 टू 10 टू द पावर 23. ओके, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ये काफ़ी कम रहता है, डेट्स व्हाई नेग्लिजिबल. 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg. 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg. Okay, mass of electron is equals to 1 upon 1837 into mass of proton. Mass of electron is equals to 1 upon 1837 into mass of proton. ठीक है, अब देखते हैं मिल्किंसन ड्रॉपलेट. हाँ, स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन Q अपॉन M, चार्ज अपॉन मास जो है इक्वल्स टू 1.76 into 10 to the power 11 कूलम्ब पर kg. 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg. 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg. 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg. Millikan's oil drop experiment. Millikan's oil drop experiment for determination of charge on the electron. Total charge on oil droplet Q is equals to Ne. n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में होगा. ओके, फिर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन Q अपॉन M is equals to 1.7 into 10 to the power 11. 1.76 into 10 to the power 11 कूलम्ब पर kg. ओके, प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन सेम उतना ही होता है, बस पॉजिटिव में. ओके, charge on 1 mole proton. Charge on 1 mole proton is equals to 1.6 into 10 to the power -19 into Na. Okay, mass of 1 proton is equals to 1.66 into 10 to the power -27 kg. 1.66 into 10 to the power -27 kg. MP क्या डिनोट कर रहा है? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. ओके, स्पेसिफिक चार्ज ऑन प्रोटॉन QP अपॉन MP is equals to 9.58 into 10 to the power 4 कूलम्ब पर kg. ठीक है, QP अपॉन QM ये जब किए तो फिर QP अपॉन QM ये स्मॉलर है किससे? QE अपॉन ME से. QE अपॉन ME ज़्यादा क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता, डेट्स वाई ये ज़्यादा है. ओके, 1837:1 का रेशियो आता. ठीक है, अब देखते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की जेम्स चैडविक ने. अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किया गया बेरिलियम पे, तो इससे न्यूट्रल पार्टिकल्स जनरेट हुआ. ठीक है, चार्ज ऑन वन न्यूट्रॉन ये ज़ीरो होता. ठीक है, मास कितना है? 1.67 into 10 to the power -27 kg. 1.67 into 10 to the power -27 kg. ठीक है, मास ऑफ 1. अब देखते हैं स्पेसिफिक चार्ज, तो ये जीरो हो गया क्योंकि चार्ज ही जीरो है. फंडामेंटल पार्टिकल्स डिस्कवरी, चार्ज, मास और स्पेसिफिक चार्ज. इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कौन किए? जे थॉमसन. चार्ज है -1.6 into 10 to the power -19 कूलम्ब इक्वल्स टू -4.8 into 10 to the power -10 ESU. ओके, मास कितना है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 into 10 to the power -31 kg. ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज 1.75 into 10 to the power 11 कूलम्ब पर kg. 1.75 into 10 to the power 11 कूलम्ब पर kg. ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी किया ई गोल्डस्टीन ने. +1.6 into 10 to the power -19 कूलम्ब इक्वल्स टू +4.8 into 10 to the power -10 ESU.
मास कितना है इसका 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, स्पेसिफिक चार्ज ना अप्रॉक्स 9.6 10⁻7 कूलम पर kg। ये सबके लिए डिफरेंट होता है क्योंकि ये गैस पे डिपेंड करता है, डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सा गैस दिया गया। ओके, न्यूट्रॉन डिस्कवरी किए हैं जेम्स चैडविक ने, चार्ज 0, मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, स्पेसिफिक चार्ज इज ऑल्सो 0। अब आता है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन इन 1898 proposed a model of atom which look more or less like plum pudding or raisin pudding. He assumed atom to be a spherical body in which electrons are unevenly distributed in the sphere, where positive charge which balance the electron charge positively charged which balance the, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, ये एटम का दिए थे स्ट्रक्चर, उसी के स्ट्रक्चर पे दिए थे। ओके, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल, द मास ऑफ एन एटम इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर होल द मास ऑफ एटम इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर होल एटम। ओके, फेलियर क्या था इसका, इट फेल्ड आफ्टर रदरफोर्ड अल्फा स्केटरिंग विच प्रूव्ड atoms to be quite different। अल्फा स्केटरिंग के बाद it failed after Rutherford alpha scattering experiment which proved atoms to be quite different, failed to explain the stability of atom। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, तो ये एक्स ये सिंबल ऑफ एलिमेंट डिनोट कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ नीचे में जेड और ऊपर ए, जेड क्या डिनोट कर रहा, एटॉमिक नंबर, और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ऊपर में जो ए है ये डिनोट कर रहा है एटॉमिक मास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ए डिनोट कर रहा है एटॉमिक मास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और ये जेड ये एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू ए माइनस जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू ए माइनस जेड। ओके, द ई अपॉन एम रेशियो ऑफ cathode ray is x unit when hydrogen H2 is filled in the discharge tube. What will be its value when ड्यूट्रॉन D2 इज फिल्ड इन इट। ये कैथोड रे, और कैथोड रे डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन होता है कैथोड रे, तो इलेक्ट्रॉन ये तो एक्स यूनिट ही रह जाएगा। ओके, एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। Na 1123 एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11 और n न्यूट्रॉन, ये कितना होगा एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ओके, मास नंबर, total the number of proton and neutron in the nucleus is called mass number of the atom, is called mass number of the atom। mass number A is equals to number of proton plus number of neutron। Okay, isotopes, atoms of same element, same atomic number but different atomic mass। isotopes, same atomic number but different atomic mass, सेम एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये तीन है, इसका आइसोटोप्स H1H1 1H2 1H3। ओके, कार्बन का भी है C6C12 6C13 6C14। ओके, आइसोबार्स, स्पीसीज हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। species having isobars, species having same atomic mass but different atomic number, species having same atomic mass but different atomic number। example, isobars species having same atomic mass but different atomic number। जैसे 18 AR आर्गन है, इसका 40 है, ठीक है। 20 CA कैल्शियम, इसका भी एटॉमिक मास 40 है, आइसोबार्स हो गया। ओके, आइसोटोन्स, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A माइनस जेड। ओके, आइसोटोन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। आइसोस्टर, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ बॉन्ड। आइसोस्टर स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जैसे N2 और CO, एटम 2 है दोनों में, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में 14 और नंबर ऑफ बॉन्ड्स दोनों में 3 है। Okay, isodiapher species having same isotopic axis
species having same isotopic axis isodiapher, species having same isotopic axis मतलब a-2z या फिर n-p कह लें, a-2z या फिर n-p isodiaphers न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, ठीक है. Isoelectronic species having same number of electron. Note, all isoesters are isoelectronic but all isoelectronics are not isoester, ठीक है. अब देखते हैं बोराजिन और बेंजीन, ये दोनों क्या है, ये आइसोस्टर है और आइसोइलेक्ट्रॉनिक है. B3N3H6 होता बोराजिन, इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6. यस. अब देखते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम अल्फा स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट. अल्फा रेज ये क्या है, 2He4 2+ हीलियम न्यूक्लियस है ये. यस. यहाँ पे रेडियो एक्टिव मेटल रखा गया, इससे रेज निकला, अल्फा रेज निकला और बहुत सारा जाके इसको स्ट्राइक किया, कुछ 180 डिग्री पे भी रिबाउंड हुआ, कुछ किसी एंगल पे बाउंड हुआ. अब देखते हैं कैसे. और यहाँ पे जो बगल में लगा हुआ यहाँ पे ZnS की कोटिंग की हुई और बीच में यहाँ पे गोल्ड थीन फॉयल रखा है, ठीक है. अब देखते हैं अल्फा स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट था क्या. रदरफोर्ड अलाउ अ नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स टू फॉल ऑन very thin gold foil. This foil had circular fluorescent zinc sulfide. This foil had circular fluorescent zinc sulfide screen around it. The alpha particles emits by radiative substance. The alpha particles emit by radiative substance are dipositive helium ions He2+, ठीक है. Having a mass of 4 unit and 2 unit of positive charge. A tiny flash of light was produced at the point where alpha particles stuck. A tiny flash of light which produced at the point where alpha particles stuck. हाँ, क्योंकि इसलिए तो यहाँ पे ZnS की कोटिंग की हुई थी. यस. ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन क्या है इसे देखते हैं. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. तो कंक्लूजन क्या मिला इससे, प्रेजेंस ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेस इन द एटम्स. ओके. Few alpha particles were deflected by small angles. Number of particles deflected n is inversely proportional to 1 upon sine की power 4 theta by 2. थीटा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन. Number of particles deflected n is inversely proportional to sine की power 4 theta by 2. Number of particles deflected n is directly proportional to z square. How? Number of particles deflected n is directly proportional to z square. वो जाके न्यूक्लियस से टकराएगा तब तो डिफ्लेक्ट होगा, तो जैसे ही z ज़्यादा होगा तो उसका साइज भी ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा. यस. n is inversely proportional to kinetic energy of alpha particles. क्यों? अगर काइनेटिक एनर्जी कम है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि अल्फा ये भी पॉजिटिव है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, ये दूर से रिपेल कर जाएगा. यस. तो डिफ्लेक्शन और ज़्यादा होगी अगर काइनेटिक एनर्जी कम है. अगर अल्फा पार्टिकल्स डज नॉट रीच द न्यूक्लियस, सब रिफ्लेक्ट हो जाएगा. हाँ. और अगर ज़्यादा रहेगा तो कुछ उसके हल्का सा बस क्लोज से जाएगा, बट बहुत सारा जा तो पाएगा. इसका कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट अ वेरी स्मॉल रीजन एंड नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड द होल एटम. If not, the large number of alpha particles would have been deflected by experiencing the enormous repulsive force from positive charge of atom. Positive charge concentrated है, ठीक है. If not, then number of alpha particles would be deflected by experiencing the enormous repulsive force from the. हाँ, ज़्यादा डिफ्लेक्शन होना चाहिए था. Okay. Very few alpha particles, 1 out of 20,000 particles rebound completely, i.e. deflected at 180 degree. Very few alpha particles, 1 out of 20,000 particles
very few alpha particles, 1 out of 20,000 particles rebound completely. 1 out of 20,000 particles rebound completely, i.e. deflected at 180 degree. Positively charged core is known as nucleus. Positively charged core is known as nucleus. Very few alpha particles, 1 out of 20,000 rebound completely, i.e. deflected at approx 180 degree. वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 आउट ऑफ 20,000 रिबाउंड कम्प्लीटली 180, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज बस थोड़ा सा एरिया में बीच में है, डेट्स वाई. यस, मेन फीचर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, nucleus in an atom, the mass and positively charged is centrally located in extremely small region called nucleus. The volume of the nucleus is negligible as compared to the total volume of the atom, as the radius of atom is about 10 to the power minus 10 meter, and the radius of nucleus is 10 to the power minus 15 meter. As the radius of atom is about 10 to the power minus 10 meter, and the radius of nucleus is 10 to the power minus 15. Both the proton and neutron present in nucleus, collectively known as nucleons. Extra nuclear part, the nucleus is surrounded by revolving electron. Okay, limitations: fail to explain stability of atom, क्योंकि according to Maxwell classic theory, unaccelerated charged particles liberate energy. Unaccelerated charged particles liberate energy. So during revolving, it must radiate energy, and by following the spherical path, it should come to the nucleus within 10 to the power minus 8 second. And also fail to explain the atomic line spectrum. Okay, density of nucleus is equals to 2.3 into 10 to the power 17 kg per meter cube. Density of nucleus is equals to 2.3 into 10 to the power 17 kg per meter cube. 2.3 into 10 to the power 17 kg per meter cube. Range: approx size of nucleus 10 to the power approx size of radius of nucleus is equals to 10 to the power minus 15 meter, और फिर approx size of radius of atom is equals to 10 to the power minus 10 meter. Radius of nucleus is equals to 10 to the power minus 5 times of radius of atom. 10 to the power minus 5 times ये छोटा है एटम से न्यूक्लियस. यस, अब देखते हैं फ्रैक्शनल साइज ऑफ टोटल एटम. वी मतलब of nucleus, volume of nucleus is equals to 10 to the power minus 15 times of volume of atom. वॉल्यूम ऑफ एटम जो है वो 10 टू द पावर 15 टाइम्स ज़्यादा है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस से. यस, reason for revolving of electron around tiny charged nucleus is for balancing the centripetal force and electrostatic force. mv square by r is equals to k q1 q2 upon r square. Electrostatic force or centripetal force balance centrifugal force. Yes, x-rays are high energy electromagnetic radiation which are not deflected by electric and magnetic field. X-rays are high energy electromagnetic radiation which are not deflected by electric and magnetic field. X-ray high energy electromagnetic radiation which are not deflected by electric field and magnetic field. Okay, radioactivity. Alpha rays consist of 2 unit positive charge and 4 atomic mass. Yes, beta ray consist of negatively charged particles और गामा से डिनोट करते हैं. ओके, पेनिट्रेशन पावर गामा का सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद बीटा, फिर अल्फा.
ओके, अब देखते हैं न्यूटन्स। न्यूटन्स सबसे पहले आए, ये लाइट के बारे में बताइए, पार्टिकल नेचर है, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी दिया इन्होंने, एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, कुड नॉट एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ओके, हाइजन क्लार्क मैक्सवेल, हाइजन क्लार्क मैक्सवेल, theory of EMW, theory of EMW, light wave nature, theory of EMW, electromagnetic wave, theory of EMW, electromagnetic wave, light, theory of EMW, light। और ये मैक्सवेल क्या बताया, लाइट जो ये वेव नेचर शो कर रहा, हाँ, और थ्योरी ऑफ EM वेव का थ्योरी दी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थ्योरी दिए हैं हाइजन क्लार्क मैक्सवेल। ओके, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, बट कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कैम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट विथ टेम्परेचर, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, पार्टिकल नेचर, क्योंकि ये सब शो कर रहा था इसलिए इन सभी चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके, अब देखते हैं प्लैंक, लाइट पार्टिकल, प्लैंक लाइट पार्टिकल नेचर है, प्लैंक लाइट पार्टिकल नेचर है, प्लैंक बताए लाइट जो है ये पार्टिकल नेचर का है। ओके, एक्सप्लेन, ये सारा जितना था पार्टिकल नेचर का वो सब एक्सप्लेन किया, बट कुड नॉट एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ई इक्वल्स टू एच म्यू। ठीक है, अब आइंस्टाइन ये बताया लाइट ये ड्यूअल नेचर का है। आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू ड्यूअल नेचर लाइट propagate as wave and interact with matter as particle and interact with wave as wave. According to dual nature of light propagate, according to dual nature of light propagate as wave and interact with matter as particle and interact with wave as a wave. Wave nature, reflection, reflection, refraction, diffraction, interference, और particle nature, black body radiation, photoelectric effect। इन दोनों को डिफरेंस देखते हैं एक बार। पार्टिकल हो गया जैसे मम्मी चप्पल मार रही है तो वहाँ पे मैटर ट्रांसफ़र हो रहा, मतलब डो नॉट कॉन्टैक्ट में, सॉरी मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा। जब चप्पल मार रही है मम्मी तो वहाँ पे दोनों कॉन्टैक्ट में आ रहा, मतलब मैटर का ट्रांसफ़र हो रहा। ठीक है, बट वेव में ऐसा नहीं होता। वेव में जैसे प्रिया प्रकाश दूर से ही डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, ये हुआ वेव। डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी इज, disturbance in which energy is transferred from one point to another, disturbance in which energy is transferred from one point to another without any transfer of matter। वेव क्या है, डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। वेव क्या है, डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर, विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन, और इधर प्रोपगेशन कर रहा और इधर मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन। वेवलेंथ ये लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहा वेवलेंथ। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड, और ये वेवलेंथ देखते हैं क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest और ट्रफ इज नॉन एज वेवलेंथ। वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड एज नैनोमीटर, एंगस्ट्रम, पिकोमीटर, फर्मीमीटर। लैम्डा इज इक्वल्स टू nm। ओके, एंड n लैम्डा इक्वल्स टू 10 नैनोमीटर में अगर है देन नैनोमीटर में तो इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 मीटर। एंगस्ट्रम में तो इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 मीटर। पिकोमीटर में इक्वल्स टू 10 टू द पावर -12 मीटर। फर्मी मीटर में इक्वल्स टू 10 टू द पावर -15 मीटर। यहाँ क्रस्ट हो गया, इधर ट्रफ्ट हो गया, ये लैम्डा। ठीक है, दो क्रस्ट के बीच में या फिर दो ट्रफ के बीच में। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी म्यूज रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। म्यूज इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा, वेयर c स्पीड, वेयर c वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल्स टू 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, यूनिट हर्ट्ज है, सेकेंड इनवर्स। म्यू इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा, म्यू इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा। वेव नंबर म्यू पर एक्टिंग ये डिनोट करता है वेव नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ तो म्यू पर एक्टिंग इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा।
यूनिट हो गया मीटर इनवर्स. ओके. टाइम पीरियड टी. टाइम पीरियड reciprocal of frequency. टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 1/μ. reciprocal of frequency. यूनिट ऑफ t ये क्या होगा सेकेंड. यस. रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हाइट कितना वो एम्पलीट्यूड बता रहा. नो रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल. अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल नो रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी. अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एनर्जी इक्वल्स टू ये इंटेंसिटी को बता रहे थे एंड आई इज डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एनर्जी इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी. इंटेंसिटी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. ए क्या है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. ओके. इंटेंसिटी नंबर ऑफ रेज फॉलिंग पर यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड. इंटेंसिटी ये क्या है नंबर ऑफ रेज फॉलिंग. नंबर ऑफ रेज फॉलिंग पर यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड. इंटेंसिटी क्या होती है नंबर ऑफ रेज फॉलिंग पर यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड. 1 मीटर स्क्वायर का ये एरिया है 1 सेकेंड में. इंटेंसिटी नंबर ऑफ रेज फॉलिंग पर यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन ये क्या है. EM radiation are those which are associated with electromagnetic radiation are those which are associated with electric field and magnetic field perpendicular to each other as well as perpendicular to direction of propagation. Okay. These radiations do not require any medium for propagation. These radiations do not require any medium for propagation. They cannot be deflected by external magnetic field or electric field. They cannot be deflected by external magnetic field or electric field. They always travel with same speed 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay. They leave their source behind. Arrangement of different EM radiation in increasing order of lambda wavelength or decreasing order of mu frequency is known as electromagnetic spectrum. Arrangement of different electromagnetic radiation in increasing order of their lambda wavelength, ठीक है, और decreasing order of frequency is known as electromagnetic spectrum. जैसे कॉस्मिक हो गया, कॉस्मेटिक सबसे आगे आता है, ठीक है, कॉस्मिक, फिर गामा एक्स यूवी इन मिस्टेक रे, ये था ट्रिक. तो कॉस्मिक, फिर गामा रेज, फिर एक्स रेज, गामा एक्स यू से हो गया यूवी रेज, फिर वी से हो गया विजिबल विब्योर जिसमें आता. ओके. फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, देन रेडियो. इन मिस्टेक एम से हो गया माइक्रोवेव, ठीक है, आर से हो गया रेडियो. जैसे आगे जाते जा रहे हैं, जैसे आगे जाते जा रहे हैं, देन लैम्डा इंक्रीज होते जा रहा और फिर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होते जा रही. तो यहाँ पे लैम्डा इंक्रीज होते जा रही एंड म्यू फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होते जा रही. आगे जाते जा रहे हैं, लैम्डा इंक्रीज एंड म्यू डिक्रीज. ओके. रेडियो वेव मैक्सिमम वेवलेंथ. रेडियो वेव का वेवलेंथ मैक्सिमम है एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी. ओके. और कॉस्मिक रेज यहाँ पे मिनिमम वेवलेंथ है और फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. ओके. Planck quantum theory. Energy is absorbed or emitted not continuously but discontinuously in forms of small energy packet known as quanta. Energy is absorbed or emitted not continuously but discontinuously in form of a small energy packet known as quanta. In case of light, they are known as photon. In case of light, they are known as photon. In case of heat, they are known as phonons. Energy of each photon is directly proportional to its frequency. E is directly proportional to mu. E is equals to h mu. Okay. E is equals to n h mu. And क्या हो गया, if n is not given or not asked, then n is equals to 1. ठीक है. E is equals to h mu था और फिर क्या होता है, E is equals to NHC upon lambda. E is equals to NHC upon lambda. n हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स और lambda हो गया वेवलेंथ, mu हो गया फ्रीक्वेंसी, h हो गया प्लैंक कांस्टेंट, is equals to 6.6 × 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड. ओके. Radiation speed c in vacuum, it means they travel
इट मीन्स they require material medium of propagation, और c क्या लेते हैं, c is equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second. हाँ, it requires, they require material medium for propagation. Photon is a neutral molecule. Photon is neutral molecule and its rest mass is 0. Photon travels as well as a wave but absorbed as a particle. Energy and frequency are additive in nature, but wavelength is not additive in nature. Yes. अब देखते हैं. E is equals to NH mu और NHC upon lambda. Yes. E अगर जूल में फाइंड आउट करना है, अगर एनर्जी जूल में फाइंड आउट करना है, देन लैम्डा मीटर में लिखते हैं, और फिर SC is equals to 2 into 10 to the power minus 25. अगर E एनर्जी अगर जूल में चाहिए, देन लैम्डा मीटर में लेते हैं, और फिर HC is equals to 2 into 10 to the power minus 25. ओके. E अगर EV में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, E अगर EV में है, देन लैम्डा is equals to एंगस्ट्रम में, और HC is equals to 12400. E अगर एनर्जी अगर जूल में चाहिए, देन लैम्डा मीटर में, और फिर HC is equals to 2 into 10 to the power minus 25. HC is equals to 2 into 10 to the power minus 25, और लैम्डा मीटर में लेंगे जब E जूल में चाहिए. ओके. जब E एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, देन लैम्डा एंगस्ट्रम में लेंगे, और HC is equals to 12400. ओके. तो फिर देखते हैं. गिवन लैम्डा is equals to 40 नैनोमीटर, देन फाइंड E, म्यू और म्यू पे रखेंगे. तो फिर लैम्डा is equals to गिवन है 14 to 10 to the power minus 9, देन E is equals to SC अपॉन लैम्डा. तो ये यहाँ से HC 2 into 10 to the power minus 25 अपॉन लैम्डा गिवन है, तो ये जूल में आया. ओके. अब म्यू फाइंड आउट करना था. म्यू इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू H म्यू, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा लेंदी है. म्यू इज इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा, तो ये ज़्यादा ईजी होगा. म्यू इज इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा. म्यू इज इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा. तो C हो गया स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा 14 to 10 to the power minus 9 मीटर. ओके. यहाँ से आ गया. म्यू पे रैक्टिंग इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन 40 नैनोमीटर इनवर्स. ओके. सब कुछ आ गया. हाँ, एक क्वेश्चन है. अ बल्ब इमिट लाइट ऑफ वेव लेंथ 4500 एंगस्ट्रम. द बल्ब इज रेटेड एज 150 watt and 8% ऑफ द एनर्जी इज इमिटेड एज लाइट. लैम्डा गिवन है 4500 एंगस्ट्रम. ठीक है. और यहाँ पे पावर हो गया, द बल्ब इज रेटेड एज 150 वाट, तो पावर हो गया 150 वाट. यस. एंड देन 8% ऑफ द एनर्जी इज इमिटेड एज लाइट. तो एनर्जी कितना है इसका यूज़ हो रहा है यहाँ पे 8%, तो 8 अपॉन 100 इंटू 150. ओके. यहाँ से आ गया 12, 8 अपॉन 100 इंटू 150, तो ये आ गया 12 जूल. ठीक है. फिर P इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो एनर्जी ली है, हाउ मैनी पूछा क्या, हाउ मैनी फोटॉन्स आर इमिटेड बल्ब पर सेकेंड. तो E इज इक्वल्स टू NSC अपॉन T लैम्डा. तो N अपॉन T बराबर E लैम्डा अपॉन HC. E लैम्डा हो गया, E हो गया 12 जूल, 12 गुना 4500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10. ये लैम्डा हो गया अपॉन HC 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25. ओके. तो यहाँ से N अपॉन T आ गया 270 इंटू 10 टू द पावर 27 माइनस 10. ठीक है. अब देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो मीन्स हो गया लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब करंट. तो फोटो मतलब लाइट हो गया, इलेक्ट्रिक मतलब करंट, और फिर ये हो गया फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू लाइट. फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू लाइट. यस. जैसे लाइट, यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ है, यहाँ अमीटर हो गया, बैटरी है. ठीक है. ये डिटेक्टर हो गया. लाइट जैसे ही, और ये वैक्यूम चैम्बर है. ठीक है. ये मेटल सरफेस है. लाइट जैसे ही मेटल इंसिडेंट एनर्जी, ये लाइट जो है इंसिडेंट किया मेटल सरफेस पे, देन यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ. देन जब मूव करने लगा ये, तो डिटेक्टर इसको डिटेक्ट किया, अमीटर में डिफ्लेक्शन आया. ओके. देन ई इंसिडेंट एनर्जी इक्वल्स टू ई नॉट. ई नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. ई इंसिडेंट इक्वल्स टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. ई इंसिडेंस इक्वल्स टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, व्हेन द light is incident on metal surface, then electron is ejected out from metal surface and
When light is incident on metal surface, then electron is ejected from the metal surface, and from metal surface an electron move between cathode and anode, and current produces known as photocurrent, and effect is termed as photoelectric effect. Okay, photoelectric equation, E incident is equals to E naught plus kinetic energy. E incident हो गया इंसिडेंट एनर्जी, E naught हो गया used for ejection of electron from metal surface, used for ejection of electron from metal surface, और kinetic energy क्या हो गया used for flow of electron. yes, E incident is equals to E naught plus kinetic energy. E incident energy और E naught हो गया used for ejection of electron from metal surface plus kinetic energy हो गया flow of, used for flow of electron. ओके, E incident energy, फिर E naught ओमेगा नॉट और फाई, ये क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर इसे वर्क फंक्शन भी कहते हैं. ओके, एक अब ग्राफ देखते हैं. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई इंसिडेंस माइनस ई नॉट. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई इंसिडेंस माइनस ई नॉट. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट. तो काइनेटिक एनर्जी और म्यू के बीच का ग्राफ है. देन वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. तो यहाँ पे स्लोप तो ये पॉजिटिव में आया. ठीक है, अब यहाँ पे म्यू जो है, म्यू इंसिडेंट तो उसे चाहिए कितने के बाद ही होगा फोटो इलेक्ट्रिक, मतलब पहले जो कुछ एनर्जी उसे चाहिए इमिट होने के लिए, तो वो म्यू नॉट हो गया इतनी फ्रीक्वेंसी से चाहिए मिनिमम. देन उसके आगे फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए यहाँ पे इंटरसेप्ट जो ये नेगेटिव में आया है एच म्यू नॉट, तो ये नीचे आके टच हो गया इस लाइन को, ये एच म्यू नॉट, फिर ये म्यू नॉट के आगे है और इसके नीचे जो ये डॉटेड लाइन में शो करते हैं, डिनोट करते हैं. ठीक है, फिर इसके ऊपर चाहिए, देन इसे करते हैं स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट. ओके, तो यहाँ पे स्लोप हो गया एच, इंटरसेप्ट हो गया माइनस एच म्यू नॉट. ओके, जो एनर्जी इस पे गिर रही, इंसिडेंस हो रही, और फिर ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के. देन एनर्जी इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे म्यू भी इंक्रीज़ हो रहा, मतलब उतनी एनर्जी से दे रहे हैं, और जैसे ही एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलता है और काइनेटिक एनर्जी के साथ. तो ई अगर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा. यस, तो मतलब म्यू इंक्रीज़ हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है, बट मिनिमम म्यू नॉट के बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके, तो फिर इफ़ म्यू इंक्रीज देन काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज. इफ़ म्यू इंक्रीज देन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड रिमेंस सेम. हाँ, क्योंकि उसका एरिया तो उतना ही है. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड, और एनर्जी कितना एनर्जी का लाइट यूज़ कर रहे हैं. यस, हाफ एम वी स्क्वायर. अगर वी यहाँ से फाइंड आउट करना है देन इसको इधर ले आएंगे. काइनेटिक एनर्जी बराबर ई इनिशियल माइनस ई नॉट हो जाएगा. देन वी इक्वल्स टू रूट अंडर आ गया ये सब. हाँ ठीक है, ये तो फाइंड आउट कर लेंगे. अब देखते हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड. नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड ये इधर हो गया. वाई एक्सिस पे ये ले रहे हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, और एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं. मिनिमम म्यू नॉट चाहिए, इसके बाद ही होगा इमिशन इलेक्ट्रॉन का. तो अब अगर यहाँ पे म्यू नॉट दिए हैं तो ये तो हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन दे, चाहे अब फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा बढ़ा दें, ये एक जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, उससे ज़्यादा वो नहीं इमिट कर पाएगा. देन ई इक्वल्स टू एच म्यू. देन ई इक्वल्स टू एच म्यू, और म्यू हमेशा ग्रेटर होना चाहिए म्यू नॉट से, तभी तो वन इलेक्ट्रॉन इमिट ओनली, बस एक ही इलेक्ट्रॉन निकला, फिर उसके बाद तो ये कांस्टेंट रह गया. म्यू नॉट के बाद थोड़ा सा ऊपर, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर उसके बाद ये कांस्टेंट. ओके, इंटेंसिटी और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड. इंटेंसिटी और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड. देन इंटेंसिटी भी अगर देखें, इंटेंसिटी अगर जितनी ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा होगा. हाँ, क्योंकि एरिया बढ़ा रहे हैं तो फिर अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहा. बट कंडीशन ये म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू नॉट होना चाहिए, और लैम्डा इज स्मॉलर देन और इक्वल टू लैम्डा नॉट होना चाहिए. ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस. ठीक है, ये था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस. ओके, थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन ई नॉट फाई और ओमेगा नॉट. मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. ओके, कंडीशन क्या है, ई इंसिडेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू ई नॉट होना चाहिए. ठीक है, म्यू इंसिडेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू नॉट होना चाहिए, बट लैम्डा इंसिडेंस ये लेस देन और इक्वल टू लैम्डा नॉट होना चाहिए. ओके, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, वायलेट. Evidence in support of
Planck quantum theory, particle nature, black body radiation. The body which absorb and emit all types of radiation is called black body. The body which absorb and emit all types of radiation. The body which absorb and emit all types of radiation is called black body, and radiation emitted by that body. The body which absorb and the body which absorb and emit the body which absorb the body which absorb and emit the body which absorb and emit all types of radiations is called black body, and radiation emitted by that body is called black body radiation. ठीक है, black body radiation based on particle nature. इंटेंसिटी रहा और यहाँ पे लेमडा. अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं देन, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं देन लेमडा ये जो इंक्रीज़ होते जा रहा है, बट इंटेंसिटी कम होते जा रही. टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे लेमडा इंक्रीज़ होते जा रही. नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज़ किए हैं तो ये कर्व और ज़्यादा पिक होते जा रहा, मतलब इंटेंसिटी बढ़ रही. हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे इंटेंसिटी बढ़ रही, बट ब्लैक बॉडी रेडिएशन की मतलब और ज़्यादा रेडिएट हो रहा. टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो इंटेंसिटी बढ़ गई, बट लेमडा डिक्रीज़ हो चुका है, वेवलेंथ कम हो गया. एनर्जी बढ़ी, वेवलेंथ बढ़ी, बट लेमडा डिक्रीजेज. हाँ, टेम्परेचर दी हीट किए तो एनर्जी बढ़ गई, म्यू बढ़ गई, बट लेमडा डिक्रीज़ हो गई. ओके. There is no ideal black body, for example iron Fe. ठीक है, at a given high temperature which decrease in wavelength, at a given high temperature which decreases in wavelength. जब हाई टेम्परेचर है तो यहाँ पे वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड रेडिएशन first increases to maximum, then start decreasing with decrease in wavelength. Yes, at a given high temperature, when further increase in temperature, its color almost remains the same, but its glow increases. at further increase in temperature, उसके बाद increase करते रहे, then increase in temperature, its color almost remains same but glow increases. Okay, देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का कुछ और पॉइंट है. नोट, photon can cause ejection only one electron. Photon can cause ejection only one electron. Therefore number of electron depends upon number of photon per unit area. Then number of electron depends on number of photon per unit area. इंटेंसिटी पे डिपेंड करता. Kinetic energy of electron depends on energy of photon. Kinetic energy of electron depends on energy of photon and is independent of intensity of light. Kinetic energy is equals to h mu minus h mu naught. ठीक है. effect of frequency on increasing the frequency of incident light, there will be no change in number of photoelectron is acting, but the kinetic energy of ejected electron will increase in frequency. Yes, जैसे इधर kinetic energy हो गया और यहाँ पे intensity और brightness, इंटेंसिटी कह लो या फिर ब्राइटनेस कह लो. तो काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी कितना ज़्यादा और फिर इंटेंसिटी, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये दोनों कांस्टेंट है. चाहे फ्रीक्वेंसी कितना भी इंक्रीज़ कर लो उससे इंटेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो ये क्या है, कांस्टेंट रह जाता है काइनेटिक एनर्जी, कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल जैसे 8 जूल दे रहे हैं, ये इतना भी इसका सरफेस एरिया है, देन ओमेगा नॉट 3 जूल इसको चाहिए, फिर काइनेटिक एनर्जी कितना है 5. अभी भी ई दे रहे हैं 8 जूल, बट इसका एरिया बढ़ा चुके हैं. एंड देन ओमेगा नॉट अभी भी 3 जूल और काइनेटिक एनर्जी 5 जूल. इसका एरिया बढ़ा है, डेट्स वाई इमिशन इंक्रीज़ हुआ है, बट काइनेटिक एनर्जी रिमेंस सेम. इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा दो, इफ़ इंटेंसिटी इंक्रीजेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इंक्रीजेज. इफ़ इंटेंसिटी इंक्रीजेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इंक्रीजेज. If intensity increases, kinetic energy remains same. Yes, effect of intensity वही है. On changing the intensity of incident ray, the number of electron falling per unit area
changes. Hence, on increasing intensity, number of ejected photon will increase, but there will be no change in kinetic energy of photoelectrons. Note: potassium, rubidium, cesium shows photoelectric effect in the presence of visible light. Therefore, these are used in photovoltaic cell or photoelectric cell. स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस क्यू इनटू वी या फिर ई इंटू वी. स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट एक्सटर्नल पोटेंशियल विच इज अप्लाइड इन द सर्किट सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो. स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट एक्सटर्नल पोटेंशियल विच इज अप्लाइड इन द सर्किट so that its kinetic energy becomes zero. According to photoelectric effect, according to photoelectric equation, kinetic energy is equals to kinetic energy initial minus E naught. E V naught is equals to H mu minus H mu naught. Kinetic energy is equals to incidence minus E naught. E V naught is equals to H mu minus H mu naught. V naught is equals to H upon E mu minus H upon E mu naught. Y is equals to mx minus c. V नॉट और फिर इधर हो गया म्यू. ठीक है, तो ये म्यू नॉट, इसको मिनिमम इतना तो चाहिए, इसके बाद ही ये इजेक्ट होगा. यस, तो यहाँ पे स्लोप तो पॉजिटिव है बट इंटरसेप्ट नेगेटिव. हाँ भाई, इसके आगे ही जाएगा तो इसके बाद डॉटेड लाइन में नीचे तक डिनोट कर देते हैं. तो कितना हो गया? सी इंटरसेप्ट कितना है? माइनस एच अपॉन ई म्यू नॉट. ये इंटरसेप्ट हो गया, ये कांस्टेंट है. स्लोप एच अपॉन ई, ये भी कांस्टेंट है. पहले का एच था और अभी इसका कितना है? एच अपॉन ई. हाँ, क्योंकि यहाँ पे ई वी नॉट आया ना तो फिर ई से डिवाइड हो गया. ओके, तो फिर अब म्यू नॉट के बाद अब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहा. तो 3-4 लाइन है, तो देखते हैं कि कौन सा पहले होगा, या फिर एन ए या लिथियम. लिथियम सबसे ज़्यादा बाद में आएगा. क्यों? क्योंकि इसकी साइज छोटी तो एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इसका म्यू नॉट जो है ये सबसे ज़्यादा होगा. यस, के का सबसे कम होगा, तो के सबसे पास होगा. ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ प्लॉट काइनेटिक एनर्जी वर्सेस म्यू एंड वी नॉट वर्सेस म्यू. काइनेटिक एनर्जी वर्सेस म्यू, तो ये हो जाएगा, क्या पूछा है? स्लोप दोनों का. y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एम एक्स प्लस सी. तो m यहाँ पे एच हो गया और यहाँ पे एच बाई, तो ये कितना आया? e. ओके, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू वन एंड म्यू टू इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस सो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट केस इज डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन सेकेंड केस. determine the relation between wavelength E is equals to SC upon lambda. क्वेश्चन देखते हैं. लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी mu1 and mu2 incident on metal surface so that kinetic energy of electron in first case is double of kinetic energy in second case. Okay, determine the relation between a wavelength. Then kinetic energy 1 बराबर 2 times of kinetic energy 2. ठीक है, h mu1 minus h mu naught is equals to 2 into h mu2 minus h mu naught तो सेम ही होगा. यस, तो फिर h दोनों का कैंसिल आउट हो गया. mu1 माइनस 2 mu naught बराबर, इधर था mu naught 2 mu naught माइनस में और इधर से आया प्लस म्यू नॉट, तो ये बचा माइनस म्यू नॉट. ओके, और म्यू नॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन लेमडा 1 माइनस 2 अपॉन लेमडा 2 इक्वल्स टू minus 1 upon lambda naught. Okay, the amount of energy required to ionize a sodium is equal to the energy associated with wavelength of 250 nanometer. Calculate the ionization energy of sodium in kilojoule per mole. सोडियम का आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, Na ये किस में टूटा? Na प्लस इलेक्ट्रॉन में. आयनाइजेशन एनर्जी E ये क्या है? लैम्डा 250 नैनोमीटर. ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम पूछा है, तो E इक्वल्स टू एस सी अपॉन लैम्डा. लैम्डा गिवन है. ठीक है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 अपॉन 250 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9. ये मीटर में लिख लिया लैम्डा. ठीक है, तो ये किस में आएगा? जूल में आया. पर मोल मतलब एक मोल में पूछा गया है, तो इंटू 6.02 10 टू द पावर 23 की है. हाँ, पर मोल आ गया. अ सर्टन
metal which irradiated with light. A certain metal which is irradiated with light, mu is equals to 3.2 into 10 to the power 16 Hz. Okay, emits a photoelectron with twice the kinetic energy. Emit photoelectron with twice kinetic energy. Kinetic energy double है. As did photoelectron when the same metal is irradiated by light. When the same metal is irradiated by light. तो यहाँ पे अभी इसका म्यू कितना है, 2 into 10 to the power 16 Hz. ओके, कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. μ1 μ2 गिवन है, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल्स टू 2 है, और 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू h μ1 माइनस μ0 अपॉन h μ2 माइनस μ0. ठीक है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई किए, देन इसके बाद यहाँ से μ0 का वैल्यू आ गया. यस, अब देखते हैं. Photoelectrons are removed with kinetic energy 1.8 into 10 to the power minus 21 joule when photons of light with energy 4.23 into 10 to the power minus 19 joule fall on the metal. What is the minimum energy in kilojoule required per mole to remove an electron from? What is the minimum when a photon of light इतना का इस पर फॉल किया, मतलब ये ई इंसिडेंस दिया हुआ है. ओके, फिर उसके बाद व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी, मतलब ई नॉट इन किलो जूल रिक्वायर्ड पर मोल टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम मेटल. ई इंसिडेंस इज इक्वल्स टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. ई नॉट इज इक्वल्स टू ई इंसिडेंट माइनस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, यहाँ से आ गया. द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय इच मॉलिक्यूल E2 of a substance is 4.4 into 10 to the power minus 19 joule, and bond energy per molecule is 0.4 into 10 to the power minus 19 joule. The kinetic energy of the molecule per atom will be kinetic energy incidence, kinetic energy per एटम पूछा है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल पर एटम विल बी. ओके, ई इंसिडेंस ये गिवन है मॉलिक्यूल का, और ई नॉट भी गिवन है मॉलिक्यूल का. ठीक है, तो ई काइनेटिक एनर्जी कितना है, ई इंसिडेंस माइनस ई नॉट, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया, पर मॉलिक्यूल आया, बट हमसे पूछा गया एटम, तो 2 से डिवाइड कर देंगे. A2 ही तो है, 2 एटम है, तो 2 से डिवाइड कर दिया. ओके, a photon of wavelength 300 nanometer is absorbed at a high energy level from ground state. ठीक है, it emits 2 photon. A wavelength of 1 photon is 400 nanometer. Then find the wavelength of other. Then E1 बराबर E2 plus E3. ठीक है, SC upon lambda 2 plus SC upon lambda 3. SC तो कैंसिल आउट हो गया. 1 upon 300 is equals to 1 upon 400 plus lambda 1 upon lambda 3. 1 upon lambda 3 यहाँ से फाइंड आउट को कर लिए. ओके, अब आता है बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल based on quantum theory of radiation and classical laws of physics based on quantum theory of radiation and classical theory of physics based on quantum theory of radiation and classical laws of physics. Important postulate, i.e. Bohr atomic model based on particle nature, based on quantum theory of radiation and classical laws of physics based on quantum theory of radiation and classical laws of physics. Important postulate, i.e. Bohr atomic model based on particle nature, i.e. Bohr atomic model based on particle nature. Bohr model applicable for hydrogen and hydrogen-like atoms. For one electron particle only, electron revolves around the nucleus in such a way as a planet revolving around sun. Path of electron is circular. Circular force of attraction between nucleus and electron is equal to centrifugal force of a moving electron. Force of attraction towards nucleus is equal to centrifugal force. Electron revolve only
In those orbit, electrons revolve only in those orbit whose angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. Okay. Center of an atom is occupied by heavy mass positively charged nucleus around which electrons are continuously revolving in fixed circular orbit known as orbits or cell or series or level or stationary state. Okay. सेल यहाँ पे एन जो ये के एल एम एन, तो एन इज टू 1 तो के, 2 तो एल, 3 तो एम, 4 तो एन. ओके. एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सेल इट्स एनर्जी रिमेन्स सेम. ये स्टेशनरी स्टेट में एनर्जी इसकी रिमेन्स सेम. Okay, as we move away from the nucleus, energy continuously increases but energy difference decreases. As we move away from nucleus, energy continuously increases but energy difference decreases. Okay. Energy of an electron in an atom is negative because when electron is at infinite distance, its energy is taken as 0. Okay. According to Bohr model, electron revolves in given cell so that its energy remains same or its possesses energy. According to Bohr model, electron revolves in a given cell so that its energy remains same or its possesses energy. एन ये क्या डिनोट कर रहा है? ऑर्बिट नंबर और सेल नंबर और स्टेशनरी स्टेट और सीरीज और लेवल. ठीक है. मैक्सवेल ये बताए चुके, हाँ ये पहले ही बोल दिए कि ये सेम एनर्जी सेम रहेगा. क्यों? क्योंकि इन्हें मालूम था, मैक्सवेल थ्योरी दे चुके हैं, आइसोलेटेड चार्ज जो है ये एनर्जी रेडिएट करता. हाँ, इस बार मैक्सवेल फेल नहीं कर पाए बोर्ड्स की थ्योरी को. यस. Only those orbits are permitted and is not equal to fraction in which angular momentum is simple whole number of h upon 2 pi or h per acring. तो ऑर्बिट यहाँ से मिला ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम nh अपॉन 2 pi इक्वल्स टू एन h per acring. ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम nh अपॉन 2 pi इक्वल्स टू एन h per acring. ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू एन h अपॉन 2 pi एन h per acring. ठीक है. अब देखते हैं आर का रिलेशन. आर इक्वल्स टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड. आर इक्वल्स टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड. आर इक्वल्स टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड. आर नॉट इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रम. आर नॉट इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रम. आर इक्वल्स टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड और आर नॉट क्या है? 0.529 एंगस्ट्रम. ठीक है. एंगुलर वेलोसिटी क्या होता? वी ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा एन इक्वल्स टू वी एन अपॉन आर एन. ठीक है. तो यहाँ से वी का भी रिलेशनशिप देखेंगे तो अपॉन आर एन कर देंगे तो ओमेगा एन आ जाएगा. ठीक है. अब देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ इक्वल्स टू के क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. तो एफ इक्वल्स टू के, ये इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. और यहाँ न्यूक्लियस के चार्ज कितना है? जेड ई. तो के जेड ई इंटू ई, तो ई माइनस का तो स्क्वायर हो गया. ठीक है. और ऊपर में एक जेड रह गया. ओके. और नीचे में क्या था? अपॉन आर स्क्वायर. आर क्या होता है? एन स्क्वायर बाय जेड था. तो इसका स्क्वायर तो क्या हो गया? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड क्यू अपॉन एन की पावर 4. ओके. अब देखते हैं वेलोसिटी. Velocity is equals to 2.16 into 10 to the power 6 into z by m meter per second. V is equals to 2.16 into 10 to the power 6 into z by m meter per second. Z by m meter per second. Okay. Time period is directly proportional to n cube by z square. Time period is directly proportional to n cube upon z square. तो फिर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल्स टू जस्ट 1 अपॉन टाइम पीरियड. टाइम कितना था? एन क्यू अपॉन जेड स्क्वायर. तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू. ओके. अब टोटल एनर्जी देखते हैं. टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो इसमें टोटल एनर्जी इक्वल्स टू ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. टोटल एनर्जी इक्वल्स टू ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. E इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. ई भी पर एटम. ओके. E इक्वल्स टू ई बराबर -13 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल. ये याद रखना जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है. जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर
ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब इसका सारा ऑर्बिटल फाइंड आउट करते हैं तो उससे डिवाइड करते थे ना, हाँ तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। ओके, ये भूलना मत, Z² अपॉन N स्क्वायर होता है, Z² अपॉन N स्क्वायर। ओके, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी और नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। ओके, ionization energy, energy requires to remove an electron from the outermost cell of the isolated gaseous atom, then total ionization energy is equals to minus of total energy. Ionization energy is equals to delta E is equals to En2 minus En1, तो E जो है ये इनफाइनाइट माइनस E1 है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितना है, नेगेटिव ऑफ E1। ओके, सेपरेशन energy, amount of energy required to remove electron from excited state, तो सेपरेशन एनर्जी हो गया डेल्टा E बराबर N2 माइनस N1, N2 यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया माइनस N1। तो फिर एक क्वेश्चन है, if the ionization energy of He plus is 19.6 into 10 to the power minus 18 joule per atom, then energy of Be plus 3 ion in the second stationary state is, if the ionization energy given है हीलियम की, ठीक है, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी इसको क्या होगा E नॉट इंटू, या फिर ये लिख दो आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन इंटू Z² अपॉन N स्क्वायर, ठीक है, और ये किसका, हीलियम का है, तो 4 हीलियम सेकेंड होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम पर एटम ऑफ एन एनर्जी, और पूछा क्या, एटम, देन एनर्जी ऑफ बेरिलियम प्लस 3, एनर्जी ऑफ बेरिलियम यहाँ पे Z=4 होता, देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितना आया 19.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 अपॉन 4, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम, ये तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लिखे इंटू Z² अपॉन N स्क्वायर, Z² हो गया 4 का स्क्वायर, ओके 16 अपॉन 4 का है, क्योंकि इसका सेकेंड स्टेशनरी स्टेट का पूछा है ना, तो Z² अपॉन N स्क्वायर 2 टू 4, ओके, यहाँ से आंसर आ गया। Important conclusion for Bohr atomic model, R is equals to R naught into N square by Z, R is equals to R naught into N square by Z, R naught हो गया 0.529 angstrom, R is directly proportional to N square by Z, R is directly proportional to N square by Z, R is directly proportional to N square by Z, V is directly proportional to Z by N, V is directly proportional to Z by N, V is directly proportional to Z by N, R is directly proportional to N square by Z, V is directly proportional to Z by N, ठीक है, और फिर T is directly proportional to N cube by Z square, ओके। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी इंटू 2 इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 13.6 इंटू Z² अपॉन N स्क्वायर EV पर एटम, ठीक है, और फिर टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस 1312 इंटू Z² अपॉन N स्क्वायर किलो जूल पर मोल, ओके। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। What is the kinetic energy and potential energy of a second orbit of hydrogen atom? Kinetic energy is equals to 13.6 into 1 upon पूछा क्या, सेकेंड ऑर्बिटल ना ऑफ हाइड्रोजन, तो Z² अपॉन N स्क्वायर होता है, Z² हो गया हाइड्रोजन के लिए 1 हो गया, ठीक है, और सेकेंड ऑर्बिटल मतलब 2 का स्क्वायर, Z² अपॉन N स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, 6.8 अपॉन 2, ओके। और फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यस, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, आगे नेगेटिव साइन लगा दिए। फाइंड द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, फाइंड द एनर्जी ऑफ हीलियम व्हेन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकेंड ऑर्बिटल, Z² अपॉन N स्क्वायर, ओके। अब देखते हैं हाइड्रोजन एटम, अगर n इंक्रीज होता तो एनर्जी भी इंक्रीज होती, बट डेल्टा E ये डिक्रीज होता, यस। अब देखते हैं टोटल एनर्जी, फर्स्ट ऑर्बिट का माइनस 13.6, सेकेंड का माइनस 3.4, फर्स्ट का माइनस 13.6, सेकेंड का माइनस 3.4, थर्ड का माइनस 1.51, फोर्थ का माइनस 0.85,
total energy minus 13.6. Thank you. total energy माइनस 13.6 फर्स्ट ऑर्बिट का, ठीक है. सेकंड ऑर्बिट का माइनस 3.4, फर्स्ट का माइनस 13.6 सेकंड का माइनस 3.4 थर्ड का माइनस 1.5 फोर्थ का माइनस 0.85. ओके, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ओके, ये टोटल एनर्जी था, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव में लिख दो. ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी भी पॉजिटिव में लिख दो तो आ जाएगा. ओके, अब ठीक है, डेल्टा ई कंपैरिजन करने का. स्टेप 1, लेसर द वैल्यू ऑफ n1, डेल्टा ई ज़्यादा होगा, ठीक है. इफ़ वैल्यू ऑफ n1 इज सेम देन n2 जिसका ज़्यादा होगा उसका डेल्टा ई ज़्यादा होगा. ओके, ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल, दिस मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली one single electron atom, and ions cannot be applicable on multi-electron system. This model is applicable only on single electron atom, or ion cannot be applicable on multi-electron system because it does not take into considerable electron repulsion. Yes, in presence of external electric field, splitting of spectral lines takes place and this is known as Stark effect. ठीक है, in presence of magnetic field, splitting of spectral line takes place and this is known as Zeeman effect. Okay, it could not explain nature of a bond and shape of molecule. It could not explain nature of bond or shape of molecule. What is the potential energy? What is the potential energy of an electron present in n shell of the barium 3+ ion? What is the potential energy? What is the potential energy of an electron present in n cell of the beryllium 3+ ion? What is the potential energy? What is the potential energy of an electron present in n cell of beryllium 2+? तो potential energy, तो total energy find out कर लेते हैं. total energy जितना होता है माइनस 13.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी, ये टोटल एनर्जी होता है, ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी पूछा है तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, देन 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. और जेड स्क्वायर बेरिलियम की पूछा है मतलब 4 का स्क्वायर, और एन सेल का पूछा है तो KLMN, तो 1 2 3 4 एन इक्वल्स टू 4 आ गया, 4 का स्क्वायर कर देंगे. ओके, आंसर आ गया. क्वेश्चन है द स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन element is the spectrum produced from an element is atomic spectrum, line spectrum, absorption spectrum. ये तीनों तरह से कह सकते हैं. spectrum produced from an element is the spectrum produced from an element is known as atomic spectrum or line spectrum or absorption spectrum. Okay, electromagnetic spectrum and its types. Spectrum of given radiation. Electromagnetic spectrum and its a type. Spectrum of given radiation into different frequency and colors into a band is known as separation of given radiation into different frequency and color into a band is known as spectrum. ठीक है. absorption spectrum is photographic negative of emission spectrum क्या है? अगर एक्साइटेड यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन कोई भी मेटल है तो वहाँ पे अगर हीट दे रहे हैं देन इलेक्ट्रॉन वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया तो यहाँ से एनर्जी इमिट हुई. इस एनर्जी को पास थ्रू प्रिज्म से पास किया या फिर इसे कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर. जब जैसे ही इसे पास किया देन यहाँ से इमिशन स्पेक्ट्रम हमें मिलता है डार्क और लाइट बैंड का. ओके, अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. व्हेन वाइट लाइट इज पास्ड थ्रू sample and transmitted light is passed through prism. This is known as absorption spectra. High density hot matter का ये यहाँ से जैसे ही निकल रहा फिर ये कोल्ड के पास गया, ये एक्ट एज अ सम लाइट एब्जॉर्ब, ये कुछ लाइट एब्जॉर्ब किया, फिर उसके बाद ये प्रिज्म के पास ट्रांसफर किया ट्रांसमिटेड लाइट. तो प्रिज्म और स्पेक्ट्रोमीटर जैसे कहते हैं ये. फिर यहाँ पे इसका ग्राफ जो दिया, ग्राफ मतलब जो स्पेक्ट्रम दिया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसे कहते हैं, और यहाँ पे भी डार्क और लाइट बैंड है. ओके, और डिफरेंस देखते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में. इमिशन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन फ्रॉम इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता?
obtained when radiation emitted by the excited substance analysis by a स्टेथोस्कोप। डिफरेंस देखते हैं इमिशन। अब डिफरेंस देखते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। इमिशन स्पेक्ट्रम obtained when radiation emitted by the excited substance analyzed by a spectroscope। emission spectrum और absorption spectrum। emission spectrum obtained when radiation emitted by the radiation emitted by the excited substance analyzed by a spectroscope। obtained when radiation emitted by the excited substance analyzed by a spectroscope। Okay, और emission spectrum consists of a bright colored line separated by dark space। Okay, और फिर absorption spectrum क्या होता? obtained when substance absorb energy and left transmitted light is analyzed by a spectroscope। Okay, absorption spectrum consists of a dark line। absorption spectrum consists of dark line and color opposite to continuous spectrum। absorption spectrum consists of a dark line absorption spectrum consists of a dark line colored absorption spectrum consists of dark line and color opposite to continuous spectrum। Okay, अब देखते हैं line spectrum of a hydrogen। emission spectrum हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक जैसे हीलियम हो गया, लिथियम 2+ एटसेट्रा। when energy is provided to H2 molecule then the dihydrogen is first split into hydrogen atom। when energy is provided to the single electron present in hydrogen atom then the electron is excited to higher energy level for a while। when energy is provided to a single electron present in the hydrogen atom then the electron is excited to higher energy level for a meanwhile 10 to the power -6 to 10 to the power -8 second highly unstable and go back after transition ग्राउंड लेवल यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है। ओके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सेल को कहा जाता सीरीज कहते हैं और फिर बोर मॉडल में सेल को ऑर्बिट कहते हैं। ओके, म्यू पैराक्टिंग इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू RH जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ठीक है, म्यू पैराक्टिंग मतलब वेव नंबर इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू RH जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। म्यू पैराक्टिंग वेव नंबर इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू RH जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। म्यू पैराक्टिंग मतलब वेव नंबर इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। डिराइव फ्रॉम बोर्स एटॉमिक मॉडल। यस, और फिर म्यू पैराक्टिंग ये यूनिट सेम एज RH। यस, और RH ये क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट R इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स, R इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स, और 1 अपॉन R इक्वल्स टू 912 एंगस्ट्रम, 1 अपॉन R इक्वल्स टू 912 एंगस्ट्रम। ठीक है, N1 क्या हो गया, लोअर एनर्जी लेवल, N1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल, N2 क्या है, हायर एनर्जी लेवल। N1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल, और N2 है हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, लैम्डा हो गया वेव लेंथ। म्यू पैराक्टिंग वेव नंबर इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू RH जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू RH जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन
हाँ इसमें एक चीज़ और आता, सी इक्वल्स टू म्यू लैम्डा होता है, सी इक्वल्स टू म्यू लैम्डा देन म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, या फिर सी इंटू म्यू पे रैकरिंग, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, डेल्टा ई इक्वल्स टू एच म्यू इक्वल्स टू एस सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एस यू म्यू पे रैकरिंग। लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग लाइन, लास्ट लाइन, लिमिटिंग लाइन क्या होता है, लास्ट लाइन ऑफ एनी, लास्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज इज नॉन एज लिमिटिंग लाइन। तो ये n2 क्या हो गया, इनफाइनाइट, देन इस टाइम पे क्या होता है, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n1 का स्क्वायर, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू r जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, n2 क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो ये n लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल है, n1 के स्क्वायर के, n1 के स्क्वायर के, ओके। देन अब देखते हैं सीरीज लाइमन बाल्मर पास्कन ब्रैकेट पी फंड, लाइमन लाइमन बाल्मर पास्कन ब्रैकेट पी फंड हमफ्रे, सीरीज n1 देखते हैं, लाइमन के लिए 1 हो गया तो n2, ये 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी। इस रीजन में जब लाइट आता है तो ये यूवी लाइट होता, ओके। बाल्मर सीरीज़ में n1, बाल्मर सीरीज़ में n1 2 है और n2 3 4 5 6, और रीजन ये विजिबल रीजन में लाई करता, ओके। पास्कन में n1 3 है, पास्कन में n1 3 है, n2 4 5 6, n2 क्या है 4 5 6, रीजन इंफ्रारेड, यूवी हो गया, फिर विजिबल, फिर सारा इंफ्रारेड है उसके बाद, ओके। ब्रैकेट में n1 हो गया 4, n2 हो गया 5 6 और रीजन हो गया इंफ्रारेड। पी फंड n1 हो गया 5, n2 हो गया 6 और रीजन हो गया इंफ्रारेड। हनफ्रे ये भी हो गया n1 6 और n2 हो गया 7, फार इंफ्रारेड, यूवी हो गया, फिर विजिबल एंड देन इंफ्रारेड, फिर फार इंफ्रारेड, ओके। लाइमन बाल्मर पास्कन ब्रैकेट पी फंड हमफ्रे, लाइमन बाल्मर पास्कन ब्रैकेट पी फंड हमफ्रे, ओके। फॉर फर्स्ट लाइन इसे कहते हैं अल्फा लाइन, देन n2 इक्वल्स टू n1 प्लस 1, n2 क्या था हाई एनर्जी लेवल, n1 क्या है लोअर एनर्जी लेवल, ओके। फॉर सेकेंड लाइन तो ये बीटा लाइन इसे कहते हैं n2 इक्वल्स टू n प्लस 2। फॉर थर्ड लाइन गामा लाइन इक्वल्स टू n2 बराबर n1 प्लस 3, डेल्टा लाइन इक्वल्स टू n2 बराबर n1 प्लस 4, ओके। और फॉर लिमिटिंग लाइन और सीरीज लिमिट n2 इक्वल्स टू इनफाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल अगर बाल्मर सीरीज है देन यहाँ पे n1 इक्वल्स टू 2 है, हाँ यहाँ पे n1 इक्वल्स टू 2 होता है, तो फिर अल्फा लाइन इक्वल्स टू n2 बराबर 2 प्लस 1 3, ठीक है। n1 जब 1 होता है तो लाइमन 2 हो गया, लाइमन बाल्मर पास्कन 3 ब्रैकेट 4 हमफ्रे पी फंड 5 देन हमफ्रे 6, ओके। जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं वेवलेंथ बढ़ता जाता है, तो वेवलेंथ जो है विजिबल लाइट का 3800 एंगस्ट्रम टू 7600 एंगस्ट्रम, 3800 एंगस्ट्रम टू 7600 एंगस्ट्रम होता, ओके। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इक्वल्स टू n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इक्वल्स टू n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 upon 2. Total number of spectral line is equals to n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 upon 2, n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 upon 2, or summation of n2 minus n1 or summation of n2 minus n1, okay. Number of lines in visible series is equals to n2 minus n1. Numbers of line in indivisible series is equals to n2 minus n1. n1 energy level of that particular series. Yes. अब देखते हैं फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज हैव मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कम है तो फिर ये लैम्डा एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता, एनर्जी कम है डेल्टा ही यहाँ पे कम है, तो फिर यहाँ पे लैम्डा ज़्यादा है। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि लास्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज हैव मिनिमम वेवलेंथ। ऐसा क्यों? क्योंकि जब n2 जो यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया, मतलब ये डेल्टा ई इन दोनों के बीच का ज़्यादा होता है, बट ये इनफाइनाइट से लेके इन दोनों के बीच में, इनफाइनाइट से लेके n1 तक के बीच में यहाँ पे तो डेल्टा ई बहुत ज़्यादा हो गया। डेल्टा ई यहाँ पे मतलब मैक्सिमम है। जब लास्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज है तो डेल्टा ई मैक्सिमम हो गया, तो यहाँ पे लैम्डा मिनिमम। इसलिए लास्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज हैव मिनिमम वेवलेंथ बट मैक्सिमम एनर्जी। ओके, वेव नंबर म्यू ये मैक्सिमम है, सॉरी, अब मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम एनर्जी
वेव नंबर 1/λ होता है, ये भी क्या हो गया मैक्सिमम, ठीक है। और फिर फर्स्ट लाइन क्या हो गया, तो यहाँ पे एनर्जी उसके कंपैरिजन में तो कम है, तो यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम हो गया, वेवलेंथ मैक्सिमम, म्यू मिनिमम, डेल्टा ई मिनिमम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम, ओके। अब देखते हैं एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फोर्थ एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एंड नंबर ऑफ लाइन इन पार्टिकुलर सीरीज, ठीक है। तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब n2 बराबर 5 हो गया, एनर्जी लेवल इज टू एक्साइटेड स्टेट प्लस 1, तो n2 इज टू 5 एंड n1 इज टू 1 क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट में आ चुका है, ओके। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज टू n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1, n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2, 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, 4 इंटू 5 अपॉन 2, 2 टू 4 हो गया, 5 टू 10 लाइन, ओके। नंबर ऑफ लाइन्स इन लाइमन, नंबर ऑफ लाइन्स इन लाइमन, लाइमन में कितना हो गया n2 माइनस n1, तो 5 माइनस n2 था कितना 5, तो 5 माइनस 1 बराबर 4 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन्स इन बाल्मर 5 माइनस 2 हो गया 3, पास्कल में 5 माइनस 3 इज टू 2, 5 माइनस 4 इज टू 1, टोटल हो गया 10 लाइन, ओके। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज टू समीशन ऑफ n2 माइनस n1, total number of spectral line is equals to summation of n2 minus n1, इसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो फिर summation of 5 minus 1 is equals to summation of 4, तो 4 plus 3 plus 2 plus 1, 4 हो गया लाइमन में, 3 हो गया बाल्मर में, लाइमन बाल्मर फिर पास्कल, 2 हो गया पास्कल में, 1 हो गया ब्रैकेट में, इक्वल्स टू टोटल 10 लाइन, ओके। अब देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न फ्रॉम n टू ग्राउंड स्टेट, n हो गया n2, ठीक है, ग्राउंड स्टेट हो गया n1 मतलब 1, वैल्यू रख दिया तो आंसर आया n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2, ओके। अब देखते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन अ पार्टिकुलर सेल in n3 when number of spectral line in a particular cell in n3 where electron return from n2 to n1 बराबर n2 माइनस n3, n2 सबसे ज़्यादा है, n3 उससे कम है, n1 उससे भी कम है, ओके। तो एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन रिटर्न फ्रॉम सेवेंथ सेल टू सेकेंड सेल, फाइंड नंबर ऑफ लाइन्स इन फोर्थ सेल, देन 7 माइनस 4 इज टू 3, 7 माइनस 4 इज टू 3, 7 माइनस 4 इज टू 3, ओके। यहाँ पे 7 जो ये n2 था और फिर n3 यहाँ पे 4 था, तो 7 माइनस 4 बराबर 3, ठीक है। हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फाइंड नंबर ऑफ लाइंस इन लाइमन और विजिबल लाइट, कहाँ से कहाँ तक, n2 यहाँ पे 6 हो गया और आया कहाँ है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, मतलब n1 बराबर 2, तो लाइमन में तो एक भी लाइन नहीं आया क्योंकि 1 तक तो कोई पहुँचा ही नहीं, n1 इज टू 1, यहाँ तक कोई आया ही नहीं, n बराबर 2 तक ही रह गया, तो यहाँ पे लाइमन में 0 हो गया, ठीक है। अब विजिबल रीजन में मतलब बाल्मर में, तो बाल्मर में n1 बराबर 2, तो 6 माइनस 2 इज टू 4 लाइन, ओके। फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमन बाल्मर एंड पास्कल, तो लैम्डा लाइमन इज टू लैम्डा बाल्मर इज टू लैम्डा पास्कल, तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n1 का स्क्वायर होता है, तो 1:4:9, n1 का स्क्वायर, ओके। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n2 हो गया 3, ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, n1 हो गया 1, ओके। इन एंगस्ट्रम 1/λ इज इक्वल्स टू RH Z स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/λ इज इक्वल्स टू RH इंटू 1 इंटू 1/1 माइनस 1/9, ये यहाँ से आंसर आ गया, ठीक है, सॉल्व करने पे। हम देखते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ लैम्डा फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन फॉर बाल्मर सीरीज ऑफ हीलियम, RH भी कैंसिल आउट हो गया, Z स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 1/λ फर्स्ट का अपॉन 1/λ2, ये जैसे ही पुट किया तो 1/4 माइनस 1/9 अपॉन, ये यहाँ से फाइंड आउट हो गया, रेशियो दोनों का पूछा था, ओके। अब देखते हैं
एक दूसरा क्वेश्चन है, विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम विल हैव द सेम वेवलेंथ एज इन सेकेंड लाइन, which transition in hydrogen atom will have the same wavelength as in second line in Balmer of corresponding helium. Which transition in hydrogen atom which transition in hydrogen atom will have same wavelength as in सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर मतलब N1 बराबर तो 2 हो गया और फिर N2 बराबर 4 हो गया, यस, और हीलियम का Z बराबर 2। तो फिर यहाँ पे आर एच जेड स्क्वायर इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर बराबर आर एच जेड स्क्वायर, यहाँ पे हीलियम है तो 2 का स्क्वायर इंटू 1/N1 माइनस 1/N2, तो 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू 1/4 माइनस 1/6, तो ये कितना है बराबर 1/1 माइनस 1/4, तो N1 का स्क्वायर आ गया 1 के बराबर और N2 का स्क्वायर आ गया 4 के बराबर, यहाँ से N1 और N2 आ गया। ओके, अब देखते हैं फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पास्कल सीरीज ऑफ Li2+ इन नैनोमीटर। फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पास्कल सीरीज ऑफ Li2+ इन नैनोमीटर। Z 3 है, N1 3 है, ठीक है, N2 ये हो गया 4। ओके, हाँ लॉन्गेस्ट पूछा है ना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो होता है फर्स्ट का ही, मतलब फर्स्ट लाइन का ही। ओके, तो यहाँ से फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ थर्ड एंड फोर्थ लाइन ऑफ, तो थर्ड लाइन में ऑफ लाइमन N1 तो 1 हो गया और थर्ड लाइन N+1 तो मतलब 3 + 1 4 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे N1 बराबर तो 1 हो गया, N2 बराबर 4 + 1 5, ठीक है। विच ट्रांजिशन ऑफ लिथियम इज एसोसिएटेड विथ सेम एनर्जी चेंज एज इन सेकेंड लाइन इन ब्रैकेट ट्रांजिशन इन He+। तो यहाँ पे लिथियम, विच ट्रांजिशन ऑफ लिथियम का पूछा गया है और किसके होगा सेम एनर्जी एज सेकेंड लाइन ऑफ ब्रैकेट ट्रांजिशन, सेकेंड लाइन ऑफ ब्रैकेट Z बराबर 2, N1 बराबर 4, N1 इक्वल्स टू 4 और N2 इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे N1 RH इंटू 9 इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर बराबर RH इंटू, यहाँ पे हीलियम था तो यहाँ पे 4 इंटू 1/16 माइनस 1/36, तो ये हो गया यहाँ पे 4/9 इंटू 1 माइनस 16 माइनस 1/36 और 4/9 इंटू 1/16 माइनस 1/30, तो ये आ गया 1/36 माइनस 1/18, तो N1 इक्वल्स टू N1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 36 और N2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 81, ठीक है। यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे समरफील्ड एक्सटेंशन ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। एक क्वेश्चन और रह गया, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ सोडियम electrons are emitted with kinetic energy given है 1.6 into 10 to the power of 5 joule per mole, ठीक है। what is the minimum energy needed to remove electron from sodium and what is the minimum energy required होगा, मतलब E0 पूछा गया है, ठीक है, from sodium, and what is the maximum wavelength that which cause photoelectric emission। तो ई लैम्डा इंसिडेंस गिवन है तो यहाँ से ई इंसिडेंस आ जाएगा और मैक्सिमम पूछा है वेवलेंथ, मतलब हाँ तो लैम्डा नॉट ही पूछा है, ई इक्वल्स टू SC/λ, यहाँ से ई इंसिडेंस आ गया, देन ई इंसिडेंस बराबर E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, E0 इक्वल्स टू ई इंसिडेंस माइनस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से E0 आ गया, देन E0 इक्वल्स टू SC/λ0, यहाँ से λ0 आ गया। ओके, अब देखते हैं समरफील्ड एक्सटेंशन ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। Sommerfeld extension of Bohr model of atom। each cell has subcell। Sommerfeld extension of Bohr model of atom। ये क्या दिए, each cell has subcell। all electrons in same subcell have same energy। all electron in same subcell have same energy। number of subcell equals to cell number। okay, from all subcell first subcell is circular and rest are elliptical।
For all subcell, first subcell is circular and the rest are elliptical. From all subcell, first subcell is circular. From all subcell, first subcell is circular and rest are elliptical. From all subcell, first subcell is circular and rest are elliptical. Find how many subcell in a third cell. Find number of circular subcell to elliptical subcell. Find how many subcell in a third cell. थर्ड सेल में सबसेल तो उतना ही होगा, तो नंबर ऑफ सबसेल इज इक्वल्स टू आल्सो 3. ओके, नंबर ऑफ सर्कुलर इज टू सबसेल ऑफ एलिप्टिकल, तो एक सर्कुलर होता है, बाद बाकी सब एलिप्टिकल, तो 1:2. ओके, अब देखते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर गिवन बाय डी ब्रॉगली. जिस तरह लाइट डुअल नेचर शो करता है उसी तरह सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी डुअल नेचर शो करता है. कौन बताइए? डी ब्रॉगली दिए हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर. ओके, number of waves made by electron in a given cell is equal to n. Dual nature of matter is only applicable for moving object but not for stationary object. Matter wave associated with moving object do not possess any electric field and magnetic field, can be deflected by external electric field and magnetic field. Circumference n lambda है, ठीक है. और जितना नंबर ऑफ वेव्स इक्वल्स टू ऑर्बिट नंबर, नंबर ऑफ वेव्स इक्वल्स टू ऑर्बिट नंबर. 4 वेव है, ऑर्बिट नंबर इसका 4 होगा. ओके, सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू एन लैम्डा, 2 पाई आर एन इक्वल्स टू एन लैम्डा. प्रूफ ऑफ एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई इज गिवन बाय डी ब्रॉगली. अच्छा, ओके, अकॉर्डिंग टू प्लैंक, हाँ ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. 2 पाई आर एन इक्वल्स टू एन लैम्डा, 2 पाई आर एन इक्वल्स टू एन लैम्डा. ओके, अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी ई इक्वल्स टू एच यू इक्वल्स टू एस सी अपॉन लैम्डा. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, एस सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एम सी. देन यहाँ से आता है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी. लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गया, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी. एच हो गया प्लैंक कांस्टेंट 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड. ओके, सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी. डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक है. फॉर अदर पार्टिकल्स लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी. लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एच हो गया प्लैंक कांस्टेंट, वी हो गया वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, एम हो गया मास ऑफ दैट पार्टिकल. ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली डुअल नेचर. Significance of de Broglie dual nature. Due to heavy mass lambda very small, no significance in our daily life. जैसे कटरीना कैफ, अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कंपैरिजन में देखें दैन लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी. मास इसका ज़्यादा तो लैम्डा काफ़ी कम होगा, डेट्स वाई कंसिडर ही नहीं करते हैं. ड्यू टू हैवी मास लैम्डा वेरी स्मॉल, नो सिग्निफिकेंस इन आवर डेली लाइफ. जैसे इलेक्ट्रॉन है, इसका मास कम है, मतलब कंसिडरेबल है इसका लैम्डा. ओके, अब देखते हैं लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन √2 m k, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन √2 m k, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन √2 m q इंटू वी. ठीक है, लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रम, लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए बराबर 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रम. लैम्डा प्रोटॉन बराबर 0.286 अपॉन √v एंगस्ट्रम. लैम्डा प्रोटॉन इक्वल्स टू 0.286 अपॉन √v एंगस्ट्रम. लैम्डा अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू 0.101 अपॉन √v in angstrom. Lambda electron equals to 12.27 upon √v in angstrom. Lambda electron equals to 12.27 upon √v angstrom. Lambda proton equals to 0.286 upon √v in angstrom. Lambda proton बराबर 0.286 upon √v in angstrom. Lambda alpha particles equals to 0.010. लैम्डा और अल्फा पार्टिकल के लिए 0.101 अपॉन √v एंगस्ट्रम. अल्फा पार्टिकल के लिए, हाँ इसको सर ट्रिक बताए थे, प्रोटॉन का हो गया 0.286 अपॉन √v एंगस्ट्रम में. तो अल्फा पार्टिकल्स के लिए इसका मास ज़्यादा होता है ना, तो ट्वाइस होता है, तो 2 से डिवाइड किया, हाँ क्योंकि मास तो लैम्डा में नीचे आता है h अपॉन एम वी, तो m यहाँ पे
2 से इसको डिवाइड करती है तो फिर 0.101 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रम। ओके, और यहाँ देखते हैं एन लेमडा इक्वल्स टू 2 पाई आर एन, एन लेमडा इक्वल्स टू 2 पाई आर एन, एन हो गया ऑर्बिट नंबर, लेमडा हो गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ, आर एन हो गया रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट। ओके, हम देखते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स मूविंग दैट सेम वेलोसिटी, देन लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम मास के, मास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबसे ज़्यादा मास हो गया लैम्डा का, सॉरी अल्फा पार्टिकल्स का उससे कम, न्यूट्रॉन फिर प्रोटॉन फिर इलेक्ट्रॉन, तो लैम्डा जस्ट इसके उल्टा हो गया क्योंकि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ओके, अब देखते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 ऑफ 400 वोल्ट एंड 200 वोल्ट, potential difference has applied, then lambda 1 is to lambda 2 is equals to h upon root under 2m e into v, root under 2m e into v, 2m e तो ये दोनों कैंसिल हो गया, रूट v 400 और फिर इधर हो गया रूट 200, कैंसिल आउट कर दिया, आंसर आ गया। ओके, अब एक और क्वेश्चन है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन दैट फोर्थ बोर ऑर्बिट इज, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन, the de Broglie wavelength of an electron in the fourth Bohr orbit is, the de Broglie wavelength of an electron in the fourth Bohr orbit is, the de Broglie wavelength of an electron in the fourth Bohr orbit is 2 pi rn is equals to n lambda, 2 pi r naught into n square by z is equals to n lambda, 2 pi r naught into n square by z is equals to n lambda, n से n कैंसिल हो गया, 2 pi r naught into n किसका पूछा गया, फोर्थ बोर ऑर्बिट, 4 अपॉन फोर्थ बोर ऑर्बिट नहीं, किसी का पूछा तो मतलब हाइड्रोजन का ही, जेड इक्वल्स टू 1 ले लिया इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है, 8 पाई आर नॉट आ गया। ओके, डी ब्रॉगली वेवलेंथ में, वेवलेंथ वाले क्वेश्चन में मास तो केजी मिलेंगे, हाँ क्योंकि ऐसा यूनिट केजी होता है, ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, एम यहाँ पे केजी मिलेंगे। ओके, अब देखते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ वेव नेचर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये कौन दिए, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, हेयर इलेक्ट्रॉन scattered from nickel crystal from form concentric circle on photographic plate just like X-ray, which proved waved nature of electron, Davison and Zermer experiment, ये क्या बताए थे, concentric circle on photographic plate just like X-ray, विच प्रूफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये निकल क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन का और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रहा है फोटोग्राफिक प्लेट पे जस्ट लाइक एक्सरे का होता है, ये भी कैसा है, वेव नेचर का। ओके, थॉमसन एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट डन बाय हिम ऑल्सो, ही चूज गोल्ड इंस्टीड ऑफ निकल। ओके, अब आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, it is impossible to determine two dependent variable at same time. जैसे डेल्टा E एंड डेल्टा T, एनर्जी एंड टाइम, डेल्टा ओमेगा एंड डेल्टा Q, एंगुलर स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा X एंड डेल्टा P, पोजीशन एंड मोमेंटम. It is impossible to determine two independent variable at same time. डेल्टा एक्स क्या हो गया, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी हो गया अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है, तो फिर डेल्टा पी इक्वल्स टू होता है एम डेल्टा वी, देन इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम. Okay, h upon 4 pi is equals to 1 upon 2 into 10 to the power minus 34. H upon 4 pi is equals to 1 by 2 into 1 h by 4 pi h upon 4 pi is equals to half into 10 to the power minus 34. H upon 4 pi is equals to half into 10 to the power minus 34. Okay, h upon 4 pi कैलकुलेशन में लीजिए, h upon 4 pi is equals to half into 10 to the power minus 34.
इफ डेल्टा एक्स इज नॉट गिवन देन डेल्टा एक्स मैक्सिमम लेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन स्ट्रेट लाइन इनसाइड दैट शेप, जैसे स्क्वायर तो ये हो गया एल एल, तो यहाँ पे हो गया डायगोनल रूट 2l। ओके, उसी तरह डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, डेल्टा ई हो गया अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, डेल्टा टी हो गया अनसर्टेनिटी इन टाइम। ठीक है, डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा फाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा थीटा क्या है अनसर्टेनिटी इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा फाई इक्वल्स टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट ना, हाँ ठीक है। और फिर इफ़ वेलोसिटी इज जेड मीटर पर सेकेंड एंड डेल्टा वी इज x% ऑफ जेड, मतलब डेल्टा वी इक्वल्स टू x अपॉन 100 इंटू जेड। ओके, इफ डेल्टा p इक्वल्स टू 0 देन डेल्टा x इक्वल्स टू इनफाइनाइट, इफ डेल्टा x इक्वल्स टू 0 डेल्टा p इक्वल्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा थीटा, ये अगर 0 तो डेल्टा p इनफाइनाइट हो गया। यस